دوسرے ون ڈے میں نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ، میزبان ٹیم کے 5 بلے باز پویلین لوٹ گئے۔ نک کیلی 31 اور رائس ماریو 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہنری نکولسن 22، ڈیرل مچل 18، کپتان مائیکل 17 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کی طرف سے محمد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کی، حارث رؤف اور عاقب جاوید نے ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 3 میچوں کی سیریز میں کیوی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، میچ جیت کر سیریز میں واپس آنے کی کوشش کریں گے کپتان کو بھی ٹیم۔ یمن میں امریکی حملے اور ایران سے کشیدگی، امریکہ کا مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بدار بحری بیڑے 2 کرنے کا اعلان۔ ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے سے موجود ہے، دوسرا بحری بیڑا بھی بھیج رہے ہیں۔ پینٹاگون 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے، حکام یمن اور ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے سبب اضافی جنگی طیارے تعینات کیے، امریکی وزیر دفاع۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی، متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں آئیں۔ ایران، عرب امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات۔ یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزہ جات فراہم کر رہے تھے۔ ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے، ایران کے فوجی نیٹ ورک کو تباہ کریں گے۔ ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی محکمہ انصاف کا بیان۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھان بین کا حکم، سفارتکار اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا مواد کی چھان بین کریں۔ مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر کی سینٹ میں 26 گھنٹے سے میراتھون تقریر جاری۔ کوری بوکر نے سینٹ میں طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے پہلے سٹارم تھرمنڈ نے 24 گھنٹے 18 منٹ کی تقریر کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق کوری بوکر کی تقریر نے انہیں صدارتی امیدوار بننے کے لیے نمایاں کر دیا۔ نیو جرسی کے سینیٹر کوری بوکر ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تقریر کے دوران سوالات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تقریر میں سینیٹر کا کہنا تھا کہ جب تک جسمانی طور پر قابل رہا بولتا رہوں گا، یہ ہماری قوم کے لیے عام حالات نہیں، امریکی عوام اور جمہوریت کو سنگین اور فوری خطرات لاحق ہیں، جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معیشت کو ڈھلوان سے اڑان پہ موڑ دیا۔ اڑان پاکستان ملک کی ترقی کو پائیدار اور دیر پا بنیاد فراہم کرنے کا پروگرام ہے۔ پاکستان کی 3 اڑانیں عدم استحکام کی بدولت کرپشن ہو چکی ہے، جبکہ چوتھی اڑان کی قوم حفاظت کرے گی۔ مزید کرپشن کی گنجائش نہیں، سیاسی لانگ مارچ کو خیر آباد کر کے اقتصادی لانگ مارچ کرنا ہے۔ قوموں کے تعلقات کو اقتصادی رشتے ہی لازوال بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ پاک سعودی تجارتی روابط بڑھانے میں قومی کمیونٹی کردار ادا کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی کے نجی ہسپتال منتقل، ذاتی معالج سے مشاورت کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو بخار اور انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ صدر مملکت کی میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی میڈیکل ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کی جلد صحتیابی کی دعا، کہا پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا صدر مملکت سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ سردار اسادی کا صدر مملکت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم کو فون، صدر آصف علی زرداری کی خیریت معلوم کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। आज़म खान सबाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अबान और अंसर कियानी को इजाज़त मिली। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह न्याजी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सबाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाजुल्लाह न्याजी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पीटीआई के 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप की रोज़ाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीकाकार है, ये नहीं हो सकता। जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियत आम कैदियों को हैं वही बानी को दी जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। कैनाल्स का मामला खुश उसलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करे तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI है, चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईद का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे की रिवायत को कायम रखें। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। वापस भेजने का अमल शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। इमिग्रेशन हुकाम। कोयटा में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,278 है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के 43 कैंप्स हैं। कैंपों में 3,44,908 अफगान रिहाइश पजीर हैं। दस्तावेज। खैबर पख्तूनख्वा में गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के सही क्वाइफ नहीं। 2013 से अब तक 4,65,000 अफगान मुहाजिरीन तोरखम के रास्ते वापस जा चुके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि इस मसले को गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। वज़ीर आला बलोचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया। ख़वातीन और दीगर सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि बलोचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती वक्त की मुज़ाकरात के लिए लकपास आमद। हुकूमती वक्त और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात तातिल का शिकार। हुकूमती वक्त सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वफ्त में सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी और दीगर शामिल। हुकूमती वक्त की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती वक्त मुज़ाकरात के बाद वापस कोयटा रवाना हो गया। ईद का दूसरा रोज़ ख़त्म। तीसरे दिन का प्लान तैयार। दावतें होंगी, लजीज पकवान तैयार होंगे, यारों दोस्तों की महफिल जमेगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा। शहरियों ने सैर सपाटे का भी प्लान बना लिया। जी भर के सैर व तफरी होगी। छोटी ईद के बड़े मज़े, हर तरफ खुशियों के रंग। रात होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। कोई सब्जी खाने में मसरूफ तो किसी को दुम्बा कढ़ाई पसंद। ख़वातीन ने दही भले खाए तो बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। मुल्क भर के सिनेमाघरों में भी रश। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा फिल्म देखने पहुंची।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुबह सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और सदर ANP एमल वली खान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। हम तुमको नहीं भूले ईद के मौके पर वज़रा का शोधा को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते अबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर क़यानी की कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद की घर आमद, अहल खाना से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि शहीद कैप्टन हुसनैन अख्तर को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शुहदा के अहल खाना के बुलंद हौसले दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर है। कौम शुहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकती। कौम शुहदा और उनके लवाहिकीन के साथ है। जो ज़ैनब वाक़या है ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। हमने इस ईद को इंतहाई सादगी से मनाने का ऐलान किया। मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवारान को 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की टैंकर की टक्कर से जाम भाग मियां बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसात पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, DIG और सिंध पुलिस से बात की। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बुरसा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं। यह गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद का दूसरा रोज भी भुट्टो हाउस नोडेरो में गुजारा। आसिफा भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर भी हमला। ईद के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने अपने हल्के के वोटर्स, तंजीमी अहदेदारान, कारकुनों और शहरियों से मुलाकातें की। मसाइल से मुतालिक तजावीज़ सुनी, फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शुबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी मुलाकात की।